الیکشن کمپین میں ہی پبلک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس حلقے میں کن کن کا آپس میں مقابلہ ہے، کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، یعنی اس میں فوراً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اور یہاں پر نتائج جو ہے ایسے لوگوں کے حق میں آئے ہیں جو الیکشن میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے، گھروں میں سوئے ہوئے الیکشن سے دستبردار شدہ لوگ وہ کامیاب ہو گئے. آپ خود ذرا اندازہ لگائیں یہ کیا الیکشن تھے جی. تو اس طریقے سے نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان ہو گئے اور ہم باہر رہ گئے ہیں، یہ ان ہو کر بھی روئیں گے. ملک نہیں چلے گا ان سے، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، یہ کولیپس کر جائے گا. اب یہ جو نظام ہے ملک کے اندر کا یہ تو تمام ہو جائے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ ملک کولیپس نہ کر جائے. تو ہم نے تو ہمیشہ اس ملک کی بقا و سلامتی اور اس کے استحکام کی جنگ لڑی ہے، اور اس کا صلہ جس طرح پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دیا ہے، اس تمام تر دھاندلی کی ذمہ دار وہی قوت ہے. اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو پھر حکومت دے ان کو نا، اور اگر واقعی وہ سمجھتے کہ ہمیں دھاندلی نہیں کی تو پھر 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ تو دفن ہو گیا نا. پھر تسلیم کریں کہ قوم نے باغی کو ووٹ دیا جی، اور ہم ایک باغی کو جو ہے صوبے کا وزیراعلیٰ بنا رہے ہیں. تسلیم کریں پھر اس بات کو جی، پھر شرمانا کس چیز سے ہے جی. مولانا صاحب انتخابات 2024 سے دوبارہ دیکھ رہے ہیں آپ، 5 سال بعد ہی ہوں گے. اگر تو ان کی مداخلت ہے اور ان کے بغیر نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں اس کا الیکشن کا. ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں. مولانا صاحب آپ کی جماعت کا جو اجلاس ہوا ہے کے پی کا اور صاحب کا پاٹا کا، اس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں اور کسی میدان وغیرہ کا انتخاب کیا ہے کہ کہاں پہ ہو جائے گی؟ دیکھیے اس میں ایک تو ہم نے مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلے پر اپنی صوبائی جماعتوں کو اعتماد میں لینا تھا اور ان کو ذرا ان اسباب و وجوہات سے آگاہ کرنا تھا کہ جس پر ہم نے اس فیصلے پہ آج بھی مجبور ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں تھا دستوری لحاظ سے اپنی پارٹی کی دستور کے حوالے سے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں بھی یا نہ. اگر پارلیمان یہ ہو تو پھر اس پارلیمان کی سیاست کرنا کیا فائدہ چاہیے. تو اس حوالے سے جنرل کونسل کے پاس اختیار ہے. تو چاروں صوبوں کا ذرا ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر جو جنرل کونسل مرکزی ہے ہماری اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں اس موضوع پہ بات ہوگی. پھر جنرل کونسل سب سے با اختیار ادارہ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا. کل حلفداری کی تقریب ہو رہی ہے خیبر پختونخوا جی تو یہاں پر جو لوگ ہیں جے وائی وہ کیا حلف لیں گے؟ ہاں وہ تو ہم نے کہا کہ جب تک ہم پارلیمانی نظام سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے تب تک ہمارا پارلیمانی کردار جاری رہے گا. مولانا صاحب ابھی صدارتی الیکشن بھی آ رہے ہیں جس میں آصف علی زرداری بھی امیدوار ہے، تو کیا ان کی حمایت ہو سکتی ہے یا دوسری پارٹی کے امیدوار کی حمایت؟ اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دار نہ ہونے چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، یہ لوگ نہیں چلا سکتے، تو پھر حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑے سوچ کے الجھائی ہے. کون سمجھائے گا؟ مولانا صاحب ایک خط لکھا گیا ہے آئی ایم ایف کو پی ٹی آئی کی جانب سے، اس پر تنقید کی جا رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے میں نظریاتی آدمی ہوں، میں آئی ایم ایف کو اتنا انوالو کرنا، ویسے بھی ان کے رویے ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں. کچھ اقتصادی طور پر ہم اتنے کمزور ہوئے ہیں ماضی میں کہ وہاں پر بھی ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بہت سخت شرائط پر وہ ہم سے بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہر چند کی یہ مسئلہ ہے. اب جس وقت ہم نے کہا تھا کہ وہ اسمبلی غلط ہے، وہاں پر تو آئی ایم ایف جو ہے اس کے ہاتھ سب کچھ بیچا گیا. ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا گیا، بڑے بڑے اثاثے ان کے حوالے کیے گئے. میرے خیال میں ہمیں کسی باہر کی اداروں کو اس حد تک مداخلت کے لیے دعوت نہیں دینی چاہیے. مولانا صاحب اگر احتجاج آپ کی طرف سے ہو تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اکٹھے احتجاج کر سکتے یا دوسری کو واپس کرتے ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیں جی کہ آپ لوگ خاص طور پر جو ہماری صحافتی دنیا ہے، اگر کہیں پر کوئی آدمی ایک پہلا قدم اٹھاتا ہے تو آپ فوراً اس کو منزل پہ پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ منزل میں ابھی کوسوں 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 سفر ہوتا ہے.
वो ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खैर मक़दम किया। मेहमान की इज़्ज़त हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब व तमद्दुन का हिस्सा है। लेकिन ज़ाहिर है कि इख्तलाफात भी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उनके हवाले से, उनके नज़रियात, उनके एजेंडे के हवाले से, और उनके और हमारे दरमियान कोई एक दीवार हायल नहीं है बल्कि पहाड़ हायल है। उनको हम कैसे सर करेंगे, किस तरीके से हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। लेकिन एक सियासी जमात और एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई फ़रीक मामलात को तय करने पे आमादा है और वो संजीदा हैं इसमें कि हम जमीयत के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहते हैं, तो सियासी आदमी मुज़ाकरात भी करता है, वो मसले के हल का इनकार भी नहीं करता, वो एक मंजिल तक पहुंचना भी चाहता है। हम कोई बंदूक की सियासत तो नहीं कर रहे, हम तो दलील की सियासत करते हैं, और अगर हमें कोई मुतमईन कर सकता है तो हम उसमें रुकावट भी नहीं है। लेकिन अभी इसमें मरहला बहुत बाकी है। फौरी तौर पर ये शायद हम न कह सकें कि हमारे मामला तय हो गए हैं। हाँ, कुछ उसको हम एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। मौलाना साहब ये फरमाएं कि एक तो आपने जैसे फरमाया कि इजलास था और एक इसमें जो पार्लिमानी सियासत है उस पर नजरसानी भी एक नुक्तों में नुक्ता शामिल था। ये आज का जो इजलास था इसमें अमूमी राय, अमूमी तासर क्या पाया गया? दूसरी बात है कि जैसे सिंध में इकट्ठे एहतजाज किया जा रहा है धांधली के खिलाफ GDA के प्लेटफार्म से, यहाँ भी कल भी ANP का जो है एहतजाज है। इस हवाले से जो मुतासरीन है या मुतासर जमातें हैं या जो धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं, आपस में कोई वो हुआ है, राब्ता हुआ है और कोई इकट्ठा एहतजाज का प्रोग्राम भी है कि नहीं? ये सवाल तो हो गया एक दफ़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अगर थोड़ी सी हमारी जमात की जो स्ट्रक्चर है उस पर ख्याल करें। इस वक्त तक तो सूबे अपने अपने तौर पे एहतजाज का तरीक़ाकार तय कर रहे हैं। तो सिंध में एक अंदाज से होगा, बलूचिस्तान में और अंदाज से। यहाँ मरकज़ का इजलास जब होगा और उसमें जो तय होगा उसके मुताबिक पूरे मुल्क में यकसां हमारा एक्शन होगा और उस हवाले से हमारे इक़दाम होंगे। तो मौलाना साहब ये मरकज़ में हुकूमत साजी के हवाले से या बलूचिस्तान में हुकूमत में शमूलियत GOI के हवाले से कुछ राबिते हुए आपकी जमात के साथ? सियासी लोग राब्ते तो करते हैं, राब्ते तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सियासत में नहीं हुआ करते। लेकिन हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फ़ैसला किया है। मौलाना साहब असेसमेंट तो क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और कौमी असम्बली में कितने मेंबरान हैं जो आपके बनते हैं फार्म 45 के मुताबिक? यानी आप जीत चुके हैं, आपसे लिए गए हैं, आपने अपने असेसमेंट के मुताबिक कितने होंगे? मैंने तो अभी इस सवाल का जवाब नहीं सोचा, वरना मैं अभी हिसाब किताब करूंगा आपके कहने के बाद। मौलाना साहब धांधली का तरीक़ाकार क्या था? और दूसरा है कि 8 फरवरी के नताइज के बाद आप नहीं समझते कि साइफर और 9 मई का जो बयानिया था वो खत्म हो चुका है, तो इमरान खान को भी अब रिहा होना चाहिए? मैंने तो गिरफ्तारी के वक्त ही कह दिया था, आज तो मैं नहीं कह रहा, मैंने गिरफ्तारी के वक्त भी कहा था कि सियासत का मज़ा नहीं आ रहा, कि मेरा मुखालिफ जो है वो बंधा हुआ है और मैं आज़ाद फिर रहा हूँ, तो मुकाबले का मज़ा नहीं आ रहा मैंने कहा। तो मैं तो किसी सियासतदान के जेल में, लेकिन अब आगे कानून का मामला है, अदालतों का मसला है, तो वो मामला तो ज़ाहिर है कि उन्होंने खुद अपने तौर पर करने होते हैं। जहाँ मेरे सियासी सोच के हवाले से बात है, क़त्ल नज़र इसके कि केसेस की नौइयत क्या है, मैं किसी सियासतदान की क़ैद में रहने का, हम खुद कैद गुजार चुके हैं, कई कई साल तक हम जेलों में रहे हैं, जेल में आते जाते रहे हैं। तो ये सियासी लोग जेल में जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये नौइयत क्या है केसेस की, क्यों जेल में है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं किसी सियासतदान के जेल में जाने पर न खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ इख्तलाफ हो, वो भी खुले हाथ करे, हम भी खुले हाथ करें। और धांधली का तरीक़ाकार क्या था? धांधली का तरीक़ाकार हर पोलिंग स्टेशन का अपना अपना था। नहीं, पोलिंग स्टेशन का मौलाना साहब पहले आप जलसे में एक बात क्या करते थे कि कुछ लोग आपके पास बैग लेके आए, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, फिर आपको तनहा कर दिया 18 के इंतखाबात में। अब 24 में आपको फिर से तनहा कर दिया, बाकी कौम पर जमात साइड से कर दी गई। प्लेन
इसमें मैं एक सवाल एक वाला टेंशन है कि एक तरफ बाजावड़ में आपको सिक्योरिटी थ्रेट थे, ठीक है, आपकी जमात को भी थ्रेट थे, हमले भी हुए थे, वो तो फिर दाइश ने मान लिया था कि हम कर रहे हैं। फिर डीआई खान में आप पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग होती रही, आप लोग तंग करते रहे, क्या इससे हम ये तासुर ले सकते हैं कि जानबूझ के ये लोग यही करते रहे कि आप हुकूमत में ना आ सके? और तुरफा तमाशा ये है कि इलेक्शन जब गुजर गया उसके बाद कोई थ्रेट नहीं। तो ये सारा आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस 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 तरीके को अपनाया गया, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे तरीके अपनाए गए कि हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जिसको कामयाब कराना है उनके साथ गाड़ियाँ रखकर वो इलाकों में जाते हैं कि जहाँ आदमी सोच भी नहीं सकता। तो उनको पब्लिक से मिलने के मौके मुहैया किए जा रहे हैं, उनको सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। हमें कहा जा रहा है कि आपने पब्लिक में नहीं जाना, आपके लिए ख़तरा है, गए तो फिर हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ये सारे वही हरबे होते हैं कि आपको किस तरीके से नाकाम बनाया जाता है और किस तरीके से आपके खिलाफ अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। ये वही चीज़ें हैं जो मौलाना साहब ये एक सवाल का जवाब दें कि जैसा कि आपने फरमाया कि हम हर किस्म के इंतखाबात से ताल्लुक़ रहेंगे जो पार्लियामेंट में हो रही है। खैबर पुख्तनख्वा में कल असम्बली का इजलास है, तो जो अपोजिशन की साइड की जमातें हैं उससे भी आप ताल्लुक़ रहेंगे, अपोजिशन लीडर के इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे और जरा के उसमें नहीं रहेंगे, इस किस्म का? जी हाँ, ऐसा ही है। मैं एक बात और भी आपसे अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। मैंने अभी दोस्तों से भी कहा कि मसला क्या है, यानी हम किसके लिए प्रॉब्लम है। ये तो हम तस्लीम नहीं करते कि हमें पब्लिक ने मुस्तरद किया है, हमें अपने हुजूम का भी पता है। मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं 100-200 सीटें जीतने की पोजीशन में हूँ, लेकिन अपनी जो हक है मेरा उसका अंदाज़ा मुझे है कि किस हद तक हमें कामयाबी हासिल होनी चाहिए, लेकिन तकलीफ़ किसको है। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, इस्लामी कानून साजी की बात करते हैं, तो ये किसके लिए प्रॉब्लम है। अगर हमारी बड़ी ताकत असम्बली में जाती है तो फिर हमारी ये नज़रिया किसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। मेरे ख्याल में इस मसले को हमें जांचने के लिए पाकिस्तान की तारीख़ को भी सामने रखना होगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे हुक्मरान अव्वल से लेकर आखिर तक इस मुल्क में किसी तरह की इस्लामी कानून साजी के हवाले से तैयार नहीं हुए, और आज भी उनको यही ख़तरा है कि ये आवाज़ जो है यहाँ दबा दी जाए किसी तरीके से, ताकि रोज़ रोज़ असम्बलियों के अंदर जो है अपनी अददी क़ुव्वत की बुनियाद पर अपने नज़रिए की बात ना कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप भी ये जानते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो तहरीक हमने चलाई उसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बर्रसगीर और जनूबी एशिया में एंटी अमेरिकनिज़म पैदा किया, और उसको एतराफ़ किया। आपके सहाफ़ी ने एतराफ़ किया इसका जी, मीडिया ने एतराफ़ किया इसका जी। तो उस हवाले से भी अगर आलमी क़ुव्वतों के मुकाबले में हम कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनकी भी हिदायत ये होती है कि इनके हुजूम को कम किया जाए। और फिर ऐसे वक्त में जबकि अमारत इस्लामिया का इस्तेहकाम अमरीका और मगरबी दुनिया को कबूल नहीं है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को लड़ाने के लिए मनसूबाबंदी भी की जा रही है, और इस बीच में हम आते हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका नतीजा अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम भी होगा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी होगा। ये भी उनकी नज़र में खटक रहा है कि ये पार्टी है कि उसको इतना बड़ा किरदार न दिया जाए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे इस्लामिया के इस्तेहकाम का ज़रिया बने। ऐसे मौके पर जबकि सारी अमरीका और मगरबी दुनिया इसराइल की पुश्त पर खड़ी है और फ़िलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई हुई और हम खुलकर मैदान में आए, हमने जलसे किए, पेशावर के बड़े जलसे में उनके नुमाइंदे को बुलाया, कोयटा में हुआ, कराची में हुआ, फिर हम कतर गए, उनकी क़यादत से मिले। तो ये भी बैनुल-अक़वामी दुनिया को बड़ा खटका है कि भाई एक क़ुव्वत ऐसी है कि जो खुलकर इसराइल की मुखालफत में और फ़िलिस्तीनियों के हक़ में सामने आ रही है और हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो ऐसे लोगों को असम्बली से बाहर रखा जाए। ये अवामिल हैं कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारी वजूद से किस किस पर मनफी असर पड़ सकता है। तो वो सारे लोग जिन पर हमारी ताकत का मनफी असर पड़ता होगा वो इकट्ठे हो गए हैं हमारे खिलाफ, और उन्होंने हमारे हुजूम को कम करने के लिए। और आप सदरात की इत्तला के लिए, इलेक्शन से पहले मुझे इत्तला हो गई थी, इलेक्शन से पहले, कि आपके लिए फैसला हो चुका है कि जमीयत के हुजूम को और सुखेड़ा जाए। यह इलेक्शन से पहले कैसे फैसला होता है, और वही हुआ। तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं इससे। मौलाना साहब ये बताएं कि जो अफगानिस्तान का आपने दौरा किया, क्या वही वजह
وجہ بنی کہ جس میں آپ کو پھر الیکشن میں ہرایا گیا؟ یہ وقت تو کیا کہتا رہا، رات سارے رات یوسف زلیخا کی کہانی سنا رہا تھا، صبح ہوئی تو زلیخا مرد ہے عورت۔ یہ جو اجلاس ہوا ہے، یا آپ کی طرف سے کوئی احکامات ہیں حاجی غلام علی صاحب کے لیے کیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے آئندہ کچھ دنوں میں؟ دیکھیے، یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ایک آئینی منصب ہے، اور ہم اسموتھلی آگے جائیں گے۔ اگر یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی ان کو، تو ہم اپنی کوئی پارٹی کا بندہ لانا چاہتے ہیں، کوئی اصرار نہیں ہے ہمارا، لیکن جماعت نے اس حوالے سے کوئی ایسی رائے قائم نہیں کی، نہ ہم اس کو کوئی سیاسی منصب سمجھتے ہیں کہ احتجاجاً مستعفی ہو جائیں۔ ایک ریاستی منصب ہے، آئینی منصب ہے، اور ہم اسموتھلی سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم کوئی سیاست نہ کرے تو اچھا ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں تو ان کے جو مطلب بیرونی عوامل ہیں اس میں، تو پھر تو پی ٹی آئی اور آپ کا جو نعرہ ہے غلامی نامنظور والا، یہ مطلب مشترکہ ایک نعرہ ہے، تو ان نکات پہ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ اس دعوے کو پہلے ہم تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پہلے سوال تو یہ ہے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کے لیے، بڑی نواز۔ بس کر